Coordinate, get signed on board. Get signed on board. He's facing some problems. Take myself, signed on board. Welcome, guys. Amit Goenka this side. Namaskar. Jai Hind. Krishna Chaitanya. Krishna Chaitanya, could you introduce yourself, please? Is it from Cyient? Yes, we are from Cyient. Along with me, Krishna Devi, head CSR, is also with me. NK Chaudhary from? NK Chaudhary from? I'm NK Chaudhary from Jaipur Foundation. Jaipur Foundation. They are one of the award winners. We joined by Anuradha Goyal ji from PSD Family Welfare Foundation. Anuradha ji, namaskar. Namaskar ji. Very happy to be here. Same here, madam, to see you. Vallabh Bhai Katheria, apna camera on kariye. Let us have a look at your celestial disposition. Former Minister of State, Government of India, Atalji's time, HRD, DPE. Nagaraj Manjule ji, apna video on kariye. Videos off, you are out of the show, sir. I'm sorry. Videos on kar lijiye, sir. Major General Abhay Gupta. Sir, very, very warm welcome. Abhay ji, namaskar. Thank you so much. Honored to be on this panel. Thank you. Sir, we are honored as always. Colonel Saab, aapko inse mile hain. Colonel Himalay Singh also knows him. Justice Saab, Major General Abhay Gupta probably has been with you in a couple of shows. This is for all the CSR fraternity joining today. He is the head of the NSG operations in 2611. Thank you. अभी इन पे मूवी बननी बाकी है. Because today only I was speaking to him and he told me how Havaldar Gajendra Singh, who is also a Ashok Chakra Vijeta and who sacrificed his life in the Nariman Point, roof operation. Major Abhay Gupta has been invited to speak about the vagaries of the business of defense, especially NSG, how the corporates need to really also consider being a part of this very, very important segment, because Ashok Chakra for 2 people, but there were 100 of those young boys who sacrificed, ready to sacrifice their lives in 2611, many of whom got, completely disabled for life, but still they have no recognition. So Major General Abhay Gupta ji, we will be starting the show and we'll also be joined by Brigadier Ajit Apte, the great 1974-71 war veteran. We have a Sona Comstar team. They are the award winners for 2 categories. Sona Comstar is an MSME based out of Gurgaon. Welcome, Sona Comstar. GSCSCL, Gujarat State Electricity Corporation Limited. Gujarat State Electricity Corporation Limited, the organization which is the which we have found as the overall best company. Let us give them a warm applause to the Gujarat State Electricity team. They have been adjudged as the best company overall for CSR contribution. 25 crore rupees. 25 crore rupees over a period. Amazing work that they have done. Welcome, Gujarat State Electricity team. Mohsin Ahmed from HP. Nagaraj, can you switch on the video, please, sir? Sangeeta, your video is off. All videos to be on, please. Partha Sarthi from Axonable is there. Partha Sarthi represents a company which has done very good work in the field of aspirational districts. Hello. Hari. Pandit Ram Kumar Mishra, the son of legendary Pandit Chanulal Mishra is on board. Pandit, namaskar, Jai Shri Ram, Jai Hind. Very Pandit Ram Kumar Mishra is on board. English वाला book ले लियो आपने. अच्छा. Pandit Ram Kumar Mishra ji, namaskar. Namaskar. Son of legendary Padma Vibhushan, Pandit Chanulal Mishra, himself a great
tabla player Pandit Ram Kumar Mishra has joined us. We've been joined by Sri B.N. Tiwari, the president of the Bombay Film Industry Association. He is the man who represents 5 lakh workers in Bombay and Maharashtra, and they represent the interest of the film fraternity across the entire country. Sri Priyendranath Tiwari, president of FWICE, Federation for वाह। Western India Cine Employees. वाह, नमस्कार है उनको। नमस्कार नमस्कार Just get Brigadier Apte on board. Brigadier Apte. Brigadier Apte. Yes. Justice Saab, namaskar. नमस्कार नमस्कार Former Not Chief able Justice of to- India. Here we have Nagaraj Manjule. Nagaraj, how are you? Or is it a photograph that you put on display? It was an amazing movie on the plight of the slum dwellers of Mumbai. It was an amazing story. Hope you guys have watched the movie called Jhund. मेरे साथ एक्टर भी हैं जो झुंड में काम किए हैं, अंकुश है। नमस्कार सर। अरे अंकुश, I am already your fan यार. थैंक यू Brilliant, सो मच। brilliant acting. कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है कि ये एक्टर है कि वो लड़का है स्लम का. धारावी जिंदाबाद. थैंक यू। और ये है बाबू, बाबू जिसने काम किया है। I am very scared of this chap Babu. He is very dangerous. He is a very dangerous chap. This Babu is very. You guys beware of this Babu. He is nothing to do with anything called Babu. Babu is a term which we use out of love for our family members. He is a very, very dangerous boy. Beware. नागराज, ये हम अभी बातों को आगे लेके चलेंगे. Let me start with the opening remarks. Colonel Ranjit Singh, Joint Secretary, National Human Rights Commission, Colonel in the Indian Army, forum patron and a friend. He is a PhD in human rights. PhD in human rights. He is also an expert of sustainability. Climate is an inextricably linked issue when it comes to corporate social responsibility initiatives. Colonel Ranjit Singh, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. आपसे निवेदन है इसको आगे लेके चले. Thank you, Amit ji. At the outset, I'm extremely grateful to you. Today is a unique moment for me because I have 2 of my former bosses in this panel. First is General K.H. Singh, sir. He was the Corps Commander in Jammu and Kashmir when I worked under him. And second is former Chief Justice of India, Justice Balakrishnan, sir. Good evening, sir. I was his Joint Secretary in the Commission. Sir, good evening. गुड इवनिंग गुड इवनिंग Thank you, sir. Thank you. It's a pleasure being with you and sharing a panel with you. It's an honor for me. Ladies and gentlemen, what Amit spoke to me day before yesterday on CSR and the climate change. Ladies and gentlemen, today we have, I will straight away come to the brass tacks. Today we have 3 main challenges which are facing us. First is the Ukraine war. Second is the impact of the pandemic to all of us, rich and poor alike. And third is the climate change. Now, the climate change is assuming greater importance day by day. Climate change is the hotspot and is affecting every country on every continent. It is disrupting national economies and affecting our lives. Weather patterns are changing their pattern every day. We are seeing sea levels rising, weather changing erratically. In Delhi, a week back, temperature in the month of May, June was never 43 degrees. April was the hottest. So is the erratic weather the world over. We saw erratic floods in Assam last week. We saw last 2 days back landslides in the Manipur. So that is the impact on the climate change on all of us. Ironically, this year, 2022, climate change, corporate responsibility, state duty to protect, all these issues gained a larger importance when in the month of February 22, Glasgow held. That Glasgow was the COP26 conference, which was attended by over 100 countries and which the Indian Prime Minister also attended. In this, the shared responsibility for environmental sustainability is business and the corporate houses emerged as the theme
for this conference. COP26 set the agenda for environmental issues, net zero commitments, and other institutional responses by the business houses and governments to combat the climate change. COP26 set the tone and tenor for all of us to address this climate change. Many as scholars are calling it climate justice or climate protection or environment protection. In continuation, COP26 has also given companies the matrix and the benchmark necessary to create a deliberate, socially conscious initiatives and reduce their carbon footprints as we work towards a more sustainable future. It is highlighted that we need a balanced greenhouse gas emissions and what we call it commonly as ESG, corporate, environmental, social, and governance investment opportunities to align in all our initiatives to combat this climate change. I won't touch upon the conceptual, but I would like to say CSR is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with all the stakeholders. In order to make CSR sustainable, in short, it has got three main pillars, what we commonly call it economic, environmental, and social. These three pillars are informally being referred as people, planet, and profits. Now, CSR refers to practices and policies undertaken by the businesses to have a positive influence over the stakeholders. CSR has multiple commitments which have to be realistic. They have to be visible. Their impact has to be measurable, not only by the employees, but the society per se at large. Many scholars are saying it is a community engagement and community empowerment. According to the company, a company needs to spend at least 2% of their average net profit made during the 3 immediate preceding financial years for the CSR activities. Now, the post-COVID, a new world order is emerging, where the center of gravity from socio-economic rights all over the world is shifting to environmental and climate protection. This we are seeing universally. Big and large companies, whether developed or undeveloped nations, the center of gravity and the nucleus is shifting to environment and climate change. Now the question arises, why CSR is assuming greater importance? Why the center of gravity is shifting to the climate change? What Amitji said, climate change, climate protection. Ladies and gentlemen, first, it is the Companies Act and the amendments from 2013 onwards and the issues which CSR, where CSR is progressive legislation with compliance and accountability framework. Second, due to vast media coverage, print, social media, and all other digital platforms are covering adequately this CSR initiatives linked to the climate change. And thirdly, high consumer interest. Gone are the days when the consumers were not interested in the CSR and the other initiatives. Ladies and gentlemen, now more so, the consumers, me and you, whether it is being manufactured by any big house or small house, but consumers are very much concerned about the behavioral attitude towards the environment. Ranjit ji, thank you so much. Give us a break for 5 minutes. We'll get you back again on board. Opening remarks. Honorable Minister has joined. Honorable Minister of Steel, Minister of State Steel and Rural Development, Government of India, Shri Fagan Singh Kulaste. Mantri ji, namaskar. मंत्री जी क्षेत्र से आपको नमस्कार। अपना ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो बंद है। हाँ भैया जरा इनका ऑडियो ऑन कराइए। हाँ मंत्री जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप इलेक्शन के कार्यक्रम में भी हमारे साथ जुड़े। आज CSR का दिन है। हमारे साथ में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन है, हमारे साथ में कंपनियां जुड़ी हुई है, हमारे साथ वल्लभ भाई कठेरिया है, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट HRD वल्लभ भाई कठेरिया जी नमस्कार।
हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार 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 नागराज सर। मंजुले जुड़े हुए हैं जो आपके बहुत मैंने बड़े उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है स्लम ड्वेलिंग पे। उन्होंने पिक्चर बनाई अमिताभ बच्चन जी के साथ, पिक्चर का नाम था झुंड। हमारे साथ आर्मी के बड़े बड़े लोग जुड़े। एडमिरल सुनील लांबा हैज ज्वाइंड, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवी एडमिरल सुनील लांबा। सर वेरी वेरी वार्म वेलकम सर, नमस्कार। चलिए हाँ, नमस्कार good evening. नमस्कार। We also have Ajit Apte, the 1971 war hero। अच्छा 71 के वार हीरो हैं। 17 जो आज की डेट में बांग्लादेश गवर्नमेंट इनवाइट करती है 71 के नागराज मंजुला, दिस इज अ केस फॉर यू फॉर अनदर मूवी। 71 वार हीरो श्री ब्रिगेडियर अजीत आप्टे। वी आल्सो हैव मेजर जनरल अभय गुप्ता, द हीरो ऑफ द 26/11 अटैक्स। So Nagaraj Manjule, be very careful. Babu, you have to be extra careful. These are very serious people. Okay. Now we get on to the serious stuff. कुलस्ते जी, या आज ये कंपनियां जो जुड़ी हैं गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, सन फार्मा, एक्सो नोबल, एचपी, सायंट, सोनाकॉम स्टार, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, जयपुर रक्स, ये सारी सायंट। उसके बाद हमारे साथ में दालमिया ट्रस्ट है, मुथूट फाइनेंस है, पीएचडी वेलफेयर फाउंडेशन है। वी हैव विद अस सन फार्मा एंड गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी कंपनियों ने बहुत अच्छा काम किया है सीएसआर के विषय में। आपके स्टील अथॉरिटी को निमंत्रण था, शायद कोई ज्वाइन करे तो बड़ी खुशी होगी। सीएसआर ऑनरेबल मिनिस्टर, सिंस यू आर ऑन द रोड, यू आर ट्रैवलिंग एंड यू बीन courteous to join us, your remarks General VK Singh is joining at 5:40. General VK Singh, Minister of Road Transport and Safety, is joining at 5:40. Say your opening remarks. या थैंक यू अमित जी, बहुत अच्छा आपने सीएसआर पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के ये जो आज सीएसआर दिवस के अवसर पर एक बहुत अच्छा आपने आयोजन किया है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस काम के लिए कि आपने इन सब परिस्थितियों को भी ध्यान में रख करके कि आज की जो आवश्यकता है उसको आपने एक प्रकार का चिन्हित किया है इससे पूरे स्कीम्स को। तो मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि आज देश में सीएसआर के क्षेत्र में जितना भी आज जो सीएसआर का हिस्सा है, हमारे गवर्नमेंट साइड से भी, जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बड़े बड़े हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ऐसे सभी लोगों से भी आग्रह है कि हमने इसको एक नमस्कार हाँ, दिल्ली में हाँ, तो इसको लेकर के हमारी प्रायोरिटी सुनिश्चित होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि जब तक हम इस प्रायोरिटीज को हम तय नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ने में हमको कठिनाई होती है। और इसीलिए आज इसकी जरूरत है कि हम जहाँ भी काम करते हैं जिन क्षेत्रों में, और सबसे नीचे जो लोग हैं उसको अलग अलग क्षेत्र के अंदर इन जनरल बहुत बार ऐसा अनुभव आया है कि सीएसआर में जिस सेक्टर में हम खर्च करते हैं दूसरी कंपनी भी उसी सेक्टर को लेते हैं। इसीलिए एक अच्छा मेरा तो सजेशन ये है कि अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग सेक्टर्स को अगर हमने कुछ प्रायोरिटी मान करके इस सेक्टर में हम कुछ लोगों को मदद कर पाएंगे जो छोटे हैं, गरीब है, या जैसे पेयजल को लेकर के हो सकता है, हेल्थ को लेकर के हो सकता है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट हो सकता है, हमारे लिटरेसी इसको एजुकेशन को लेकर के हो सकता है। ऐसे अलग अलग सेक्टर पे हमारे जैसे मंत्री जी अभी अग्निपथ की स्कीम आई है, 11 लाख रुपए सरकार देगी 4 साल के बाद, आपकी सरकार देगी 11 लाख रुपया। ये जो कंपनियां हैं इनको ये पता होना चाहिए कि 11 लाख 4 साल के बाद मिल जाएगा, वो लड़का क्या करेगा। अगर सीएसआर का पैसा साथ में जोड़ा जाए तो इसमें वो एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि देखिए अग्निपथ का भी एक बहुत बड़ा अच्छा उपयोग है। गवर्नमेंट का भी तो सपोर्ट मिलेगा, अगर वो कहीं और नौकरियों में जाना चाहता है तो उसमें मिलेगा। अगर कोई इस प्रकार के किसी व्यवसाय में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कोई अच्छा प्रोजेक्ट अगर सामने लेकर के आ सकता है तो उसमें से भी वो अपने आप को भी स्थापित कर सकता है। तो ऐसे कुछ प्रायोरिटीज हमको
मुझे लगता है कि इस डिस्कशन में से निकल के आना चाहिए, ताकि हम इस प्रायोरिटी को लेकर के समाज के अंदर, देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो एकदम पीछे हैं, हमारे पास है, इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं, हम इसको लेकर के जरूर चिंता करें। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा एक अवसर भी है हमारे लिए, एक चैलेंजेस भी है, और काम जब हम करेंगे तो एक अवसर का लाभ हम लोगों को, समाज को हम दे पाएंगे। ऐसे कुछ चीजों को लेकर के हमको आज इस अवसर पर हमको कुछ पॉइंट से सिलेक्ट करना चाहिए, कुछ मेरिट हम उस पर बनाना चाहिए, और इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम और आने वाले भविष्य में इसको और कैसे, किस नजरिए से हम देख पाएंगे, ये हमारी प्रायोरिटी इसमें से तय करना चाहिए, ताकि अन्य जो क्षेत्र के जो लोग आज हमारे इस सेमिनार में जुड़े हैं, उनके ध्यान में भी विषय आएगा। मैं सारे देश भर के अंदर जब जाता हूं तो लोगों को यही कहता हूं मैं, ये हमारी जो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को कैसे हम डिसाइड करें, कौन करेगा, इसके लिए जितने भी हमारे इस प्रकार के जो लोग हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, वो अलग अलग उनके सेक्टर्स होते हैं, पर कोई कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाए और उसके अंदर हम अलग अलग सेक्टर्स को डिसाइड करें, उसमें से तो अलग अलग क्षेत्रों में जब हम करेंगे तो स्वाभाविक तौर से लोगों को एक अच्छा लाभ भी मिलेगा एजुकेशन का। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको लेकर के जरूर इस डिस्कशन में से भी चिंता हम सब लोग मिलकर के करेंगे, और इसलिए मैं आज केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चर्चा चलेगी। मैं भी थोड़ी, मेरी व्यस्तता भी है, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जरूर एक बार बातचीत करेंगे इसके लेकर के। हमारी जो आज के जो इस डिस्कशन में से भी जो फाइनल या फंडिंग्स जो आएंगे, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ये अपेक्षा के साथ मैं पुनः अमित जी एक बार आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो इतने हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, सब मेरी आवाज सुनते होंगे। मेरे लिए तो, सबके लिए मेरी यही आज की आवश्यकता, इस जरूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, अगर हमने प्रायोरिटी बेस पर लेकर के आगे बढ़ेंगे तो देश के लिए एक बहुत बड़ा आज एक शक्ति बन करके ये सार एक योजना उभर करके सामने आएगी। सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं, कई ऐसे विभाग हैं उनके, पर जब हम कंबाइंड पूरा एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के रूप में जब हम प्लान करेंगे CSR मत को लेकर के, तो बहुत अच्छे, मैं कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में हमारे फ्यूचर प्लान बने, उसमें हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लेकर के ये अपेक्षा करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अमित जी विशेषकर आपको 5 मिनट और जुड़े रहिए, 5 मिनट जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में केयर रेटिंग्स एक ऐसी संस्था है जो कि रेटिंग्स में करती है देश की अलग अलग विषयों पर। CSR पे भी रेटिंग्स होने चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी स्टील अथॉरिटी जैसी कंपनियां हैं, स्टील ने बहुत मुनाफा किया है लास्ट 2 सालों में। स्टील, खास करके एल्यूमिनियम, स्टील, माइनिंग, इस सब में बड़ा मुनाफा हुआ है। हमारा आपसे भी निवेदन है, जैसे गुजरात स्टील जैसी कंपनी है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, 25 करोड़ रुपया इन्होंने CSR पे खर्चा दिखाया है। आपकी कंपनियां भी, आपसे जो PSUs जुड़ी हुई है, स्टील अथॉरिटी है, MECL है, मॉयल है, मिधानी है, इस तरह जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं, इनको भी रिक्वेस्ट है कि CSR में आगे बढ़ के और काम करें। और मैं आपकी गुफ्तगू कराना चाहूंगा नागराज के साथ। नागराज, क्योंकि आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो नागराज आप क्या कुछ, इन्होंने एक पिक्चर बनाई है झुंड, जिसमें गरीब बच्चे, पूरे देश भर के जो गरीब बच्चे हैं, कैसे वो क्राइम की तौर, अपराध की तौर आगे बढ़ जाते हैं, बाल अपराध की तरफ। साथ में अंकुश मसराम बैठा है, जो इसमें मेन क्रिमिनल का जिसने रोल निभाया है, हीरो है फिल्म का, लेकिन लड़का बड़ा शानदार है। साथ में बाबू है। Sir, 2 minutes. We'll get you on board with your remarks, and then you may leave, sir. 2 minutes. Sir, 2 minutes. Okay, Nagraj, like to say something to the honorable minister? जी नहीं, मैं मतलब ये पूरी चीज आप इतने दिग्गज लोग के साथ आपने अचानक हमें जोड़ दिया है। और ये जो विषय पे जो ये फिल्म बनाई है झुंड, इसी बात पे है कि जो बच्चे गलत राह पकड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और हम मानते हैं कि बच्चे हमारे देश की संपत्ति है और वही हमारा फ्यूचर है, तो उनका भविष्य हम सिक्योर कर पाए, उनके लिए कुछ कर पाए तो बहुत जरूरी है। और इसी मुद्दे को लेके ये फिल्म मैंने बनाई है। और सारे
जो झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं उनको लेके ये फिल्म बनाई है। और मैं यही आशा करता हूँ कि हम मतलब बच्चों के लिए भी कुछ कर पाए और ये बच्चे आगे जाके हमारे देश के लिए कुछ कर पाए और उसमें हाथ बटाएं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे पता नहीं कि कैसे सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टील मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, आपसे कुछ इन्होंने निवेदन किया है, क्या आपने पूरी तरह से सुना सर इस विषय को? Amit, I had to go. Okay, Justice KG Balakrishnan, sir, your remarks on the subject of CSR, sir. So, Mr. Amit and distinguished participants, I think let's finalize that thing with. hello. Justice साहब, please carry on, sir. I am happy that you are organizing this function and you have to find out the best corporate sector which is contributing to the and usefully making use of this opportunity. I must say that it's an opportunity given to the all corporate sector for extending their social responsibility, to show their social responsibility. And I feel that it is to be further streamlined, and now it has been introduced since long, and the percentage also can be increased by next year or so that some more money can be used and the further guidelines can be also be issued for this corporate. I am glad you have chosen this and this will be, I am sure that you will do the best, as I had to go for an urgent. Thank you very much for inviting me to this function. Thank you very much. KG Balakrishnan, sir, it's an honor that you take out time for such issues which are not directly related to the judiciary. It is already an act which has been started from 2014. Look forward to your further participation, sir. Thank you. Thank you. You've been joined by General VK Singh, Honorable Minister of State, Road Transport and Safety, and he's also the former General of India. Jai Hind, sir. Sir, Jai Hind, sir. General VK Singh. Are you there or locked out? Yes, he's there. General Saab, camera or mobile on kar lijiye. Please unmute yourself, sir. Honorable Minister of State, Road Transport and Safety, and also Civil Aviation, Government of India, General VK Singh is on board with us. Singh Saab. Admiral Lama, can I have your camera on, please, sir? Chief of the Navy Staff. Okay, opening remarks. Lama Saab, Chief of the Navy Staff, sir, your remarks on the subject of CSR. Quick opening remarks, sir. Good evening, everybody. There's a very large segment of service personnel from the armed forces who retire every year. A majority of them are aged about 34, 35 years. And I think it will be a great initiative if the industry can get together on a common platform under FICCI or any other organization where you can look at creating jobs in rural areas where a very large number of especially ex-servicemen from the army belong to, and they retire at the age of 35 and go back to their villages. That is where I think the corporate needs to look at generating jobs in rural areas. I think that should be a focus of the CSR. Thank you. Very secondly put, sir, Admiral Sunil Lamba, today when we spoke in the afternoon, we spoke about the Agniveer scheme. General VK Singh, Honorable Minister of State, he's squeezed out time. आपकी आवाज नहीं आ रही साफ. Can you raise the volume? सर, सबको आ रही है. आपके मेरे बीच में आजकल कुछ नजर लग गई है हमारे बीच में. नहीं, नजर की बात नहीं है, आवाज नहीं आ रही है. There's something with your system. No, sir, nobody is complained of that. Anyway, sir, your remarks on the subject of corporate social responsibility. We have 20 companies. We have got top army people. We've got people from the industry. Vallabhbhai Kataria also, Minister of State Steel was there. Saji Thomas, former Olympic medal winner with us. Welcome, Saji.
Olympic medal winner Sajid Thomas is with us, the rowing star. Okay, General VK Singh, sir, your remarks on CSR. Let's first of all laud everybody in the business who gets involved in CSR, because it is as part of a social responsibility that has been given. The only problem that comes is, how do the corporates identify the type of projects that should be there? And just now Admiral Lamba also said, we need to be very clear as to what we want to do. Is it just khana purti or fill in the blanks that, okay, I've done my CSR, so much of percentage is gone? Or is it that we as corporates are interested in social upliftment and to reach out for some tangible gains? And there are many things that can be done, whether they are supplemental to the government programs running or they are incremental to government programs going, that has to be taken care of. And let me also tell you, there are many corporates who are engaged in tremendous amount of good work. Let's take the crisis that happened during the time, oxygen availability. Many came forward to establish the plants. Today, there is a need to upgrade our rural health infrastructure. Some people have come forward, some people maybe they will come forward in ensuring that the rural health infrastructure gains momentum. The government is spending. The government has got a program of 66 lakh crore rupees, but it will take time. In the meantime, can we put in our bit to pick up 2-3 places where the villager starts feeling very happy about it? And let me give you an example of a very small group, basically involved in IT work. They started using their IT prowess to put a screen with the required equipment in a village where the village women can handle it. They could get together in that room in a particular house in the mornings. They had 2 hours to talk to the administration, and they had 2 to 3 hours to talk to the hospitals where they wanted some assistance. It's a great help. It also empowers them. So my take would be that the corporates need to identify what is it that will make social impact. What is it that will help in the type of programs that are going on? What is it that will see? It is not important to say, I as company so-and-so did this, but it's more important for the company to realize that what they did has made a difference to the lives of people. If we get that approach, I'm sure we'll be able to see and do things better. There is a need to understand in the area that you are interested in, as to what is it that is needed. Is it education? Is it health? Is it for example, I went to a district called Yadgir in Karnataka. There, the Konkan Railways had given a vehicle mounted with the hematology equipment and the ultrasound equipment. The aim was that this particular district has got too many cases of malnutrition. They could go from village to village in that vehicle, check people, make a record, all computerized, have a central data, and accordingly, in 2 years' time, they were able to get people out of the malnourishment statistics that they had. Similarly, take any other, I mean, many areas are there, whether it is areas which are deficient in water, whether it is areas where health or some other issues are there, whether it is education. Can we ensure that all our village schools come up? Can they be adopted? Can they be provided a better environment? I'm sure they can be. So
all that I would like to leave for the time being is, let the CSR be meaningful. Let the CSR be result oriented. Let the CSR change lives of people. I think if we can do this, we would have achieved our aim. General VK, Road to Safety. ICICI Lombard has bagged the award for the second best project basically in the best project category for Road to Safety, Right to Safety. And you are the Minister of State for Road Transport, Highways, Government of India. We should complement these kind of new initiatives. We also need to complement, like most of the ministers and high delegates are talking about, the areas that need to be, kind of earmarked for CSR initiatives, apart from the hackneyed initiatives of education, healthcare, etc. People like Saji Thomas are on board. Before you leave, General Saab, sports has been ignored for a long time. Anurag Thakur is a good friend of yours and mine. I asked him to join. He's probably not joining, but we have Saji Thomas, former Olympian and medal winner, Asian Games gold medalist with us. Saji, your views on CSR for sports? We did not receive any entry CSR for sports. थैंक यू। पहले इधर ही आपने इन्वाइट किया, इसके लिए धन्यवाद। बड़े बड़े लोगों के साथ पहले जो गवर्नमेंट का जो कुछ एरिया में गवर्नमेंट को लिमिटेशंस है, तो उस ऐसे एरिया में हमारे को CSR का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मेनली जो है वो जो सेक्टर को जब चूज कर रहे हैं उसको हमने कितना सही है, तो उसके लिए हमने क्या क्राइटेरिया रखेगा ये तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे स्पोर्ट्स सेक्टर में है तो कई कई जगह पे गवर्नमेंट को जो पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं, तो ऐसे जगह पे तो CSR को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है उनका मूवमेंट, तो उनको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व होके एक परफॉर्मेंस दिला सकते हैं। जैसे शायद एक अच्छा परफॉर्म करने वाला एक एथलीट, तो उसको अगर हमने सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे एक सेक्टर अगर फॉरवर्ड आ गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगा। ऐसे भी आपने बोला जो स्पोर्ट्स का है, जो अनुराग ठाकुर साहब ने बहुत अच्छा से कर रहे हैं। अभी आजकल देखा जाएगा तो जो पहले के हिसाब से देखा जाए तो हमने स्पोर्ट्स सेक्टर बहुत एडवांस में गया, तो काफी इम्प्रूवमेंट में देखने के लिए मिला। अभी लास्ट ओलंपिक्स में हम देखेगा तो Saji, thank you. Saji, when you were rowing as an Olympian, when you were growing up as a kid from the age of 8, from the age of 10, when you started till you got Olympic and Asian medals, were you ever supported by the corporate sector or did you find your colleagues like Anju Bobby, PT Usha, these are the kind of colleagues you grew up with, from Kerala especially, did you find them being supported by the CSR initiatives? Saji, the question is to you. Rowing, so it is not a popular, not much more. Like in a recent Olympic Bokanal, अभी recent जो Tokyo Olympics का सेमीफाइनलिस्ट, उनको बारे में कई कई जगह से उनको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन हमारे रेम पे अभी तक हमने जो शुरू से लेके अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पूरे हमने गवर्नमेंट सपोर्टेड था। We've also been joined by Vallabhbhai Kataria. Vallabhbhai ji, General VK is there. Vallabhbhai and Girish Sanghi ji, namaskar. Girish Sanghi ji, बहुत बहुत नमस्कार sir. नमस्कार। These are two people who are the Vallabhbhai Kataria is former Minister of State, HRD as well as DP. Vallabhbhai ji कामधेनु project के भी head है. The Sanrakshan, Gay Sanrakshan. This is not a political issue, but yes, animal welfare. We have representation from the Animal Welfare Board also. Vallabhbhai Kataria, your views on CSR? Yes, सबको नमस्कार, वंदे मातरम। प्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं अमित जी कि आपने ये विजन इंडिया फोरम के मुताबिक आज बहुत बढ़िया एक वेबिनार का आयोजन किया है। मैं सुन रहा था आपको, बाकी के हमारे सभी वक्ता को, हमारे आदरणीय जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह को भी हमारा नमस्कार, सभी जो भी स्टालवार है सभी को वंदे मातरम। विशेषतर आपने जो कहा कि बेसिकली तो हमारी संस्कृति में हम बोलते ही थे कि 10% 1/10 ऑफ आवर इनकम शुड बी डाइवर्टेड टू सोशल एक्टिविटीज, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आकर के CSR को एक स्ट्रीमलाइन कर दिया कि जितने भी हमारे
वो बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, अकाउंटेबिलिटी ऐसी है कि हर एक बिजनेसमैन को, न केवल कॉर्पोरेट बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, लेकिन छोटे मोटे बिजनेस हाउसेस को भी बताया है कि आपको भी अपना कोई न कोई जो अमाउंट है और इनकम का वो CSR में यूज करना है। आपने सही बात कही कि मैं जो खास करके जो कामधेनु की बात कर रहा हूँ कि आजकल क्लाइमेट चेंज इश्यूज, हेल्थ इश्यूज इतने बड़े पैमाने पर हम समाज को, पूरे विश्व को इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं बेसिकली कैंसर सर्जन हूँ, इसलिए कोई मिथ में नहीं मानता। ऐसा नहीं मानना कि भाई ये मिथ है, केवल धर्म की बात है। लेकिन मैं जो पिछले 10 साल से जो गाय को अपनी मदर काउ, जिसको बोलते हैं गावो विश्वस्य माता रहो, इट इज नॉट द मदर ऑफ हिंदू ओनली, इट इज नॉट द मदर ऑफ इंडिया ओनली, इट इज द मदर ऑफ यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। क्यों कहा गया है? हमारे शास्त्रों में जो बात कही है, मैं मानता हूं कि हमारे शास्त्र ये साइंस की टेक्स्ट बुक थी, लेकिन संस्कृत में थी। इसलिए आज हमें समझना पड़ेगा काउ इकोनॉमी, काउ साइंस, और उनके आधार पर क्लाइमेट चेंज इश्यूज के आधार पर कैसे काउ डंग, काउ यूरिन, काउ मिल्क, जो पंचगव्य बोलते हैं, काउ घी और काउ कर्ड, उनका उपयोग करके सस्टेनेबल पूरे विश्व को कैसे बना सकते हैं, पूरा विश्व का कल्याण कैसे कर सकते हैं, पूरे इकोनॉमी को कैसे चेंज कर सकते हैं, पूरे युवाओं को, यूथ को एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं, विमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, खास करके रूरल। ये सब बातें गाय के साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए कामधेनु आयोग ने, भारत सरकार ने जो बनाया, उसके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम इतने, और उसमें खास करके मैं आज ये बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारा फोकस सोशल CSR में गाय नहीं है, क्योंकि इट इज एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने गोबर धन करके जो स्कीम बनाई है और 5 मिनिस्ट्री को इकट्ठा करके बताया है कि भाई आपका CSR का उपयोग आज एनवायरमेंटल इश्यूज में, क्लाइमेट चेंज इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए काउ डंग का उपयोग करके बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो गैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पूरे विश्व को हम एक नया चमत्कार दे सकते हैं। आज सेव सोइल की बात कर रहे हैं हमारे आदरणीय साउथ के संत महात्मा, उन्होंने भी कहा कि लेकिन सेव सोइल के लिए सेव काउ इज मस्ट। काउ के डंग से आने वाले दिनों में ब्राउन रिवॉल्यूशन आने वाली है। काउ डंग इज गोइंग टू बी द मेन स्टेक। तो ये बात को भी मुझे लगता है कि CSR एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए हमें ज्यादातर प्रयास करने की आवश्यकता है। काउ एंटरप्रेन्योरशिप और गाय के आधार पर हेल्थ, क्योंकि पंचगव्य इट्स वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन उनका उपयोग करके कैसे हम प्रिवेंशन एंड प्रमोटिव हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम हाईली इंटेलेक्चुअल प्रोजनी को आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि एक नहीं अनेक स्वामी विवेकानंद हमारे देश में पैदा हो, और इसके लिए एक गर्भ संस्कार और उसमें काउ पंचगव्य का उपयोग, ये सब बातें जो साइंटिफिकली प्रूवन हो रही है। तो मैं CSR के लिए अभी हमारे जितने कॉर्पोरेट है, बाकी के लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनमें काफी रिसर्च की आवश्यकता है। शास्त्रों में लिखा है, लेकिन आज के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें ये रिसर्च करके दिखाना पड़ेगा कि भाई रियली इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो ये सब रिसर्च के लिए भी, साइंटिफिक काउ बेस्ड रिसर्च के लिए भी CSR का उपयोग हो, काउ डंग के लिए भी हो, काउ घी के लिए भी हो, काउ यूरिन। आज हम कितना पेस्टिसाइड और केमिकल खा करके कितने, मैं कैंसर सर्जन खुद, इतना कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं, इतने हार्ट पेशेंट बढ़े हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वी हैव रूइंड आवर सोइल। हमारी धरती माता को पॉइजन बना दिया, और उनका एकमात्र सॉल्यूशन है काउ डंग एंड काउ यूरिन बेस्ड बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड। ये सबको मुझे लगता है कि पूरा चेंज करने में हमें CSR का उपयोग डाइवर्ट करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, केवल एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए नहीं, लेकिन काउ बेस्ड जो वेरियस सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय इसलिए लंबे में नहीं जाऊंगा, लेकिन पूरा क्लाइमेट चेंज इश्यूज को रिटार्ड करने में, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने में, और लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, जैसे कोविड ने हमें बता दिया कि बैक टू नेचर गए बिना हमारा छुटका नहीं है। तो ऐसे समय में काउ के गाय के साथ अपने लिविंग इन हार्मनी विथ ऑल एनिमल्स, ऑल लिविंग क्रिएचर, ये बात को समझ करके कहीं ना कहीं हमारे यूथ को, विमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए हमारे CSR का उपयोग, CSR का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। तो सही मायने में बहुत अच्छे विश्व का निर्माण कर पाएंगे। और मैं कहता हूँ कि ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैन बी फुलफिल्ड बाय काउ बेस्ड एनवायरमेंटली ऑल प्रोजेक्ट्स। तो ये सब बातें बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में कहूंगा कि
हमें CSR का उपयोग आने वाले दिनों में ये, और दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि इससे ये इकोनॉमी इतनी एथिकल है, इतनी मोरल वैल्यूज वाली है और इतने स्पिरिचुअल भी है, इसलिए सोशल भी है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल रिफॉर्म के लिए इतना बड़ा एक काम पूरे देश में और दुनिया में काउ बेस्ड इकोनॉमी को, काउ बेस्ड सोशल रिफॉर्म को लेकर के कर सकते हैं कि आने वाले विश्व को एक सही बेहतर विश्व बनाने के लिए गाय को हमें इस केंद्र में लाना पड़ेगा। काउ सेंट्रिक इकोनॉमी, काउ सेंट्रिक एनवायरमेंट, काउ सेंट्रिक ओवरऑल सोशल एनवायरमेंट, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, खास आने वाले दिनों में वल्लभ भाई जी, ये फील करने की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा 5-10 मिनट और जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऑनलाइन की ये विडंबना होती है कि स्पीकर्स अपने समय पे आके बोलते हैं और चले जाते हैं, तो जो बाकी स्पीकर्स होते हैं या जो अभी अवार्ड विनर्स हैं उनको बड़ा दुख होता है, ये ऑनलाइन में दिक्कत होती है। एनीवे, रहेंगे Nagaraj, you represent the cause of lakhs and lakhs of the poor boys and girls who grow up in the village, in the slums of the country. You are not only a producer director par excellence, you have raised an issue which was taken forward by me, by the Vision India Forum, with the former Chief Justice of India, Suti Kakkar, the former chairperson of NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights, and NCW, National Commission for Women. जनरल साहब, ही इज नागराज मंजुले। झुंड नाम की पिक्चर आई थी जिसने जुवेनाइल्स के ऊपर में बहुत जबरदस्त पिक्चर बनाई है 2 महीने पहले। अमिताभ बच्चन प्रोटैगनिस्ट थे, साथ में अंकुर बसराम बैठे हैं और एक बाबू नाम के हैं, ये दोनों एक्टर हैं। हम दोनों से 2-2 मिनट सुनना चाहेंगे। आप प्लीज अगर जा रहे हैं तो 2-4 मिनट को सुन के जरूर जाइए। नागराज मंजुले, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी अबाउट contribution for upliftment, rehabilitation, these kind of projects? जी सर, मैं मतलब झुंड का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी वही है और जो मैं काम किया हूँ, जो कास्टिंग हम करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि अगर हम झोपड़पट्टी के बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, हम भारत के नागरिक हैं और उनको भी मेन स्ट्रीम में उनका भी कुछ विकास हो, वो भी हमारे साथ चले, आगे बढ़े और देश के प्रगति में हाथ बढ़ाए, ये हम सोचते हैं। तो वही हमारा कंसेप्ट भी था और वो हमने किया कि जो कास्टिंग आमतौर पे करते हैं, तो हम मुंबई पुणे से करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये बच्चों को लेके ही, जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं जिनके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं, उनको ही फिल्म में लेके ये फिल्म बनाई जाए, और मैंने वो कोशिश की। और जैसे बहुत सारे दिग्गज लोग हैं और उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ या मानता हूँ कि अगर ये झोपड़पट्टी के जो लोग हैं, इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, इनका विकास नहीं करेंगे, इनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तो ये गलत रास्ते पे जाके यही हमारे देश की तकलीफ बन सकती है और ये समाज के स्वास्थ्य के लिए यही एक क्या कहते हैं, एक बुरी बात बन सकती है, जो मैंने देखा भी है। जो ये बच्चे हैं सारे छोटे छोटे क्राइम करते हैं और उसमें से कोई आगे बढ़ के कोई बड़ा एकदम क्या कहें आप, एक नामचीन गुंडा या डॉन भी बन सकता है। और चोरी चकारी से शुरू होता है, क्योंकि सही रास्ते पे ये लोग हैं नहीं, इनको पढ़ाई के लिए कुछ मदद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और हमने इस देश के नागरिक के नाते हमने इनके विकास में हाथ बढ़ाना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने अपने तौर पे, लेकिन आपने इतने बड़े एक माध्यम से मुझे एक इंट्रोड्यूस कराया है, तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अंकुर, आप ये बड़े बड़े कंपनी वालों से, मंत्रियों से, इनसे क्या कहना चाहेंगे? आपने फिल्म में हीरो का रोल प्ले किया, मुझे लगा नहीं था कि आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन अब तो मुझे देख के लग रहा है कि वाकई में यू आर मच मोर हैंडसम देन व्हाट वाज शोन इन द मूवी, एंड यू डिजर्व दैट वंडरफुल वुमन दैट यू फाइनली मैनेज टू woo. So अंकुर, tell us what you want to say about the way you guys grow up. आप लोग जिस तरह से बड़े होते हैं और आप लोगों के ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का जो खर्च है, अगर वो किया जाए स्लम डवेलिंग पे, रिहैबिलिटेशन पे, तो ये जो बड़े बड़े महान कॉर्पोरेट के लोग बैठे हैं, जो मंत्री जी बैठे हुए हैं, बड़ी लोगों को खुशी होगी सुन के। जो किया और फिल्म का जो सर नमस्कार सर, मैं आज जो कुछ भी आवाज है नागराज सर के वजह से हूँ। अगर नागराज सर नहीं रहते तो शायद मैं इधर बैठे नहीं होता आप लोगों के सामने। तुमने पिक्चर में भी यही बोला, अभी पिक्चर का नैरेटिव नहीं है, कुछ ओरिजिनल बोलो। नहीं, झोपड़पट्टी के जो बच्चे जो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं
जो घर में बैठे हैं, जो जिनको खाने को नहीं है, ऐसा आप जो मंत्री लोग जो जितने भी जन है, अगर वो बाहर थोड़ा इन बच्चे लोगों की तरफ ध्यान देंगे तो वो भी शायद आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जैसा मुझे नागराज सर ने आज ऊपर लाया, वैसा मेरी जगह जैसा मैं बैठा हूँ, वैसा कोई बैठ के आपसे बात कर सके। और मैं यही चाहूंगा कि इन लोग बाहर निकले, थोड़ा ध्यान दो इन गरीब बच्चों पे और इनकी हेल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर and Nagaraj. We have with Thank us you, General Saab. Would you like to say something to this beautiful gathering of people before you leave, sir? Because you had to leave, I know. Amit, what I would like to tell Nagaraj is that what you put on screen, जो आप स्क्रीन पे डालते हो जी सर, और जो वास्तविकता है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। आप जी। स्क्रीन पे डालते हो, उसकी अच्छी एंडिंग होती है, खराब एंडिंग होती है, जैसे आप उसको चलाना चाहते हो। जी सर, वास्तविकता के अंदर शायद ज्यादातर एंडिंग्स खराब ही होती हैं। और अगर हमें वास्तविकता के अंदर अगर काम करना है तो जैसे मैंने कहा कि चीजें पहचाननी पड़ेंगी कि हमने किस क्षेत्र में काम करना है। अगर हर कॉर्पोरेट के बीच में एक थोड़ा सा समन्वय हो जाए, थोड़ा तालमेल हो जाए कि देखिए हम एजुकेशन के अंदर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हम पानी के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हम एनवायरनमेंट के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो शायद जो राशि लग रही है उसका उपयोग सही तरीके से हो सकेगा। I think we need to find a methodology. It's very difficult because each area where the corporates are is a different area. Each area has its own problems. But अगर हम broad, अब आपने कहा कि स्पोर्ट्स के अंदर क्यों नहीं करते हैं? स्पोर्ट्स के अंदर कॉर्पोरेट्स के लिए और भी ज्यादा दिक्कत है। किसको देंगे? क्या करेंगे? क्या इंडिविजुअल को देंगे? क्या इंडिविजुअल के साथ जो लोग हैं उनको देंगे? तो ये जो राशि लगती है वो अकाउंटेबल है दो तरीके से। एक जो नॉर्मल ऑडिट होता है और दूसरा उसका ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी है कि हमने जो लगाया अपने तरफ से क्या उसका फायदा हुआ कि नहीं समाज को। So I think we need to have an amalgamation of both these. Otherwise, things will carry on the way they are. Some areas we will benefit, some areas we will not. But my appeal to all the corporates who are present here is, I think there is a greater thought required as to how we want to do things and what results do we want. If you don't want results, then this money is just going waste. Please join. So with this, General Saab, before you leave, 2 more minutes, sir, because there I would like to. Sir, 2 more minutes. So 2 more minutes. AkzoNobel has won. There are few companies who did exemplary work. Sun Pharma won the best project work. They have won the best project work. Amit, let me tell you, all companies want to do good work. They invest correctly. At times that result comes out or it doesn't come out. Depends on many factors. I think there is no company which wants to just waste money. Sir, exactly this is the reason why we dispensed with the elimination process primarily when we took out these companies as projects. गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन 25 करोड़ का इन्होंने खर्च दिखा के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया हमारे साथ। तो मैं जस्ट आपको कुछ 5-10 नाम बता दूंगा ताकि ऑनलाइन, क्योंकि ये कार्यक्रम अभी हो रहा है, there is something which is kind of recognition which everybody lives as a human being, as a professional, and it is our duty to at least recognize this good work from time to time so that these initiatives continue unabated despite all the limitations that these great educated professionals face while doing these CSR activities. AkzoNobel won silver for Amit. Yes, sir. Amit, I would like to add few points before General VK leaves. Sir, may I take a minute or two of yours, VK sir? Yeah. Yes, Kamala Rao, Deputy General Kamala Rao, Director General, Manpower Planning, Government of India, Army. Very briefly, the main agenda is laid down. Where all can you expend the CSR? It's beautifully laid down. But I am afraid I'm not very sure, ignorant, whether a correct analysis is being carried out to really find out, because people will try and take the easiest way possible. A fair number of companies may say best is to put it in the relief fund, PM relief fund. Paisa dal diye, jaan chodo. The challenges are not being taken. One,
when you analyze, possibly, I do feel that, there are 3-4 areas which are getting a little neglect, as I could fathom out. One is on the veterans part of it, as Admiral Sunil has also covered it. If the Agniveers are also taken as a part of this particular CSR's social responsibility, their employment after 4 years, that will be a good gesture. The other areas where there is a little negligence or a little lower key or heritage, which is also one of the laid down charters, sports, and to some extent, even rural development projects. People are looking at possibly those projects which are really coming to the limelight, only those are being done. So I do not know what the mechanism is there, which monitors, which are the type of areas which are getting the full money, where the money is. It may be totally skewed. Let's say, maybe where the intended purpose for which the CSR was created, the upliftment of the social, this thing, very beautifully written. It talks of health, malnutrition, education, in that particular fashion. I feel that there is a need to monitor, advise, and channelize. Even things like disaster management is also one of the things. So this is, while of course you have rightly covered, and General VK sir is also covered it very correctly. Every company would like to do a good job, right? But at times the energies which are being required to be channelized, possibly they require koi dishes to be given. Thank you. That's all I have to say. Okay, General Rao, please stay, sir, with us. We'll be closing by 6:30. We have Arun Meghwal coming on board. Arun Meghwal is the Minister of State Culture. He's also Parliamentary Affairs Minister. He'll be joining us. General Saab, Muthoot Finance has got the best award for the good health and well-being. Jaipur Rugs has won an award for the gender equality issues. PSD Family Welfare Foundation, they have won the gold for skill development. Sona Comstar is an MSME based out of Gurgaon. Comstar has done excellent work, which is a very, very different kind of CSR contribution for innovation. They've also done some good work in quality education. Sun Pharma, excellent project called Anchal, covering lakhs of people from Ma to Shishu. Jaccha or Bachcha, dono swasth rahe. They have done a fantastic work on the woman-child issues. Gujarat State Electricity, I have already told about. We've got AkzoNobel. AkzoNobel has done excellent work in aspirational district, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का भी फोकस है, और आप मंत्रियों को जगह जगह जाके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे काम करना पड़ रहा है. They've done aspirational district skill development. We have got Dalmia Trust, who's worked on agriculture and water sanitation. Care Age Group, Care Ratings, they have done excellent work in good health, well-being. Scient Limited, huge investments in education. Krishna Chaitanya represents that. Padma Shri, Mr. BVR Mohan Reddy is the owner of that organization. Mr. BVR Mohan Reddy is not come today, but Scient did wonderful work on thousands of students across various, almost more than 100 schools in the country, and they have planted trees. Your highways need trees. They have planted thousands of trees. HP has done excellent work in digital education. ICICI Lombard, fantastic project. Right to Safety, they have also done very excellent work in the health, because they cover the health insurance, I'm sure. Then General Saab, thank you so much for your valuable time. I'll be now requesting Brigadier Ajit Apte. Apte ji, opening remarks, our oldest, most patron, Brigadier Ajit Apte, 1971 war veteran, fantastic human being. He's a man who was a course mate of General VK Singh, and he will be telling you in his excellent, fluent, the way he speaks about subjects varied at large. General Brigadier Apte, CSR, and entire fraternity on display here. Amit, thank you very much. I think all very good points have come out. As General Rao mentioned, I'll only take that lead what Admiral Namba mentioned, because the Agniveer or Agnipath is now on the top schedule, and there have been commitments made that people who leave after 4 years will be adequately, re-employed. So that is one part. But I think General VK and so many other people have covered, we need to prioritize what are the main points from the CSR perspective, where the companies should focus on. One is, of course, education. Unless
our rural areas and the other people are not educated in the correct language. Unfortunately, English continues to be the main language for some reason. And unless a person is well versed with that, I don't know whether he'll be suitably or appropriately employed. I don't know. But the other point is rural healthcare, sanitation, hygiene, there are energy, there are so many items which have come up from different speakers. So I'll just put it this way, that all companies may even think that 2% is the minimum. I've also served in a corporate as a vice president in 2 multinational companies, and we all know that 2% is the minimum. But I don't think it debars any company to go above that if they feel so, like adopting villages and carrying out some social responsibilities, not in cash, but in kind. So that could be thought of. So I will just say this much, that I think valid points have come out and awards have been given. There's a proper committee which decided that. So I'll just say this much, that it's been wonderful listening to everyone. There have been some very good points which have come out. And I think if our corporate social responsibility mechanism is correctly deployed with the due resources, I think we should be able to make a quantum jump in our respective fields where we want progress. Thank you. Thank you, Brigadier Apte. Please stay back for 20 more minutes, as the closing remarks cannot happen without your august presence. As always, out of the 200, we've been joined by former Coal India CMD, the oldest surviving CMD of the public sector, General Saab Arjun Ram Meghwal has also joined us, Minister of State Culture and Parliamentary Affairs. He's also on board. BN Tiwari ji, President of Film Federation of India, Federation of Western India Cine Employees is there. He's also the Pravakta of the all Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha now. Girish Shangi is on board. Dr. MP Narayanan. But before I bring you in, Girish Shangi ji, 2 मिनट में अपना वक्तव्य पेश करें कि इस देश में CSR में आप लोग किस तरह की पेड़ लगाने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं, पेड़ लगा के इस देश में कितना उत्थान होगा, इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालें। सबको नमस्कार। CSR का जो विषय बहुत अच्छा है, इसको इस तरह से लिया जाए कि 6.5 लाख गांव है भारत में, और 6.5 लाख गांव में हर गांव में कुछ ना कुछ कमी है, कहीं पानी है तो कहीं पौधा है तो कहीं गाय का काम है। तो इसका एक प्रॉपर, जैसे गोकुल गांव का मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो चलाया गया था भारत सरकार और आदरणीय नरेंद्र भाई की तरफ से, तो हर गांव का एक लिस्ट बन जाए कि इस गांव में ये 10 या 20 चीजें है। वो जो CSR में रूरल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड और नल और गटर का ही नहीं है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है उस गांव का रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उस गांव का इंडिजिनियस ट्री प्लांटेशन, उस गांव का ग्रासलैंड, उस गांव का एनिमल्स, उस गांव का एजुकेशन। तो मतलब हर गांव का भारत सरकार के पास एक प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए, और हर CSR स्पेंडर को ये सेंट्रलाइजली Girish ji, are you there? Honorable Minister is joining. Arun Meghwal, there's some technical problem with him. The third minister for the evening. Girish ji, please continue, sir. 2 more minutes. तो मेरा ये कहना है कि एक सेंट्रल पूरा एक कमिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार की तरफ से एक मॉनिटरिंग सिचुएशन बन जाए, जिस कंपनी को जितना CSR खर्च करना है उसको उस हिसाब से गांव के लिस्टिंग दिए जाए कि भाई इस गांव में यहाँ पे स्कूल की जरूरत है, हार्वेस्टिंग की जरूरत है, यहाँ पे ग्रासलैंड की जरूरत है, यहाँ पे प्लांटेशन की जरूरत है, यहाँ पे बच्चे झोंपड़पट्टी में आते क्यों हैं? झोंपड़पट्टी की बात बहुत अच्छी हुई। झोंपड़पट्टी कहाँ बनती है? गांव में तो बनती नहीं है, शहरों में ज्यादा बनती है। तो गांव में एम्पल एवेन्यूज है जो खुलते नहीं है, गांव में कोई जाता नहीं है।
इसलिए गांव में बेकारी फैल जाती है या आर्थिक समस्या हो जाती है, फिर लोग ट्रांसफर होके शहरों में आ जाते हैं। यदि गांव में ही गाय आधारित कृषि अर्थव्यवस्था बन जाए, गांव में 3 चीज जीवन के लिए बहुत महत्व के, कोई पिक्चर में भी आया था, रोटी कपड़ा मकान। यदि रोटी कपड़ा जो है वो गांव में मिल जाता है, मकान गांव में ही है, तो कोई आदमी गांव छोड़ के जल्दी जाने का पसंद नहीं करता है, भीड़ भाड़ में रहने का, ट्रेनों में फंसने का। तो वेस्ट मैनेजमेंट से लगा के हेरिटेज, एजुकेशन, एनिमल वेलफेयर, जितने सारे एवेन्यूज है, उस एवेन्यूज पे एक अच्छा सा 15, 20, 25 पॉइंट का एक प्रोजेक्ट बन जाए। भाई इस गांव में 10 या 20 चीजें हैं, इसमें से 7 चीजें टिक हो गई, ये चीजें कंप्लीट है, बाकी की 13 चीजें करनी बाकी है, और जिस CSR कंपनी को ये पैसा खर्च करना है इस गांव में वो काम कर ले। कोई सरकारी एजेंसी को भी करना है तो वहीं से कर ले। ऐसा कोई एक सेंट्रल मॉनिटरिंग एजेंसी हो, और नहीं तो मुझे अच्छा लग रहा है प्लांटेशन, मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ, दूसरे को अच्छा लग रहा है वो शिशु का, या जो ऐसे आपने बताया कि बच्चों का कर रहा है, माता का कर रहा है, तो उससे 6.5 लाख गांव कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो भारत के सभी गांवों को कनेक्ट करना है, तो पूरा एक यूनाइटेडली एफर्ट अप्रोच, ऐसा यूनाइटेड अप्रोच हो जाए तो मुझे लगता है कि भारत के हर गांव में गौ आधारित, कृषि आधारित, जल आधारित अपना गांव, अपना गोकुल गांव बन जाए। इस तरह से CSR को इम्प्लीमेशन एजेंसी के लेवल पे ले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं गिरीश शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन। He is also, you are also the member of the Animal Welfare Board. We have a very excellent, person who was the chairman of the Coal India, touching 90. He came back from the real serious situations last year. The oldest surviving chairman of Coal India and public sector, probably the second oldest one after this Mr. Sharma, R.N. Sharma from Coal India itself. The one of the octogenarian, somebody who's going to be telling us about excellent work and the kind of pressures he faced from the MPs in the coal mines of Dhanbad, when people used to come and catch him by the collars, cup of the collar in Coal India, Calcutta, and tell him, "ये पैसा मेरे constituency में CSR का लगाना है." Dr. MP Narayanan, sir, your remarks for a minute, sir. Dr. MP Narayanan, can you hear us? Okay. Honorable Minister of Culture and Parliamentary Affairs, Shri Arjun Ram Meghwal ji from board. मेघवाल जी, क्या आपका कैमरा और माइक ठीक है? हम आपको ना देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। जनरल VK और फगन सिंह कुलस्ते, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन लोगों ने एड्रेस किया। वी हैव विद अस very solid dignitaries. वल्लभ भाई कटारिया is there on board with us. मेघवाल जी, अभी भी आपका कैमरा और ऑडियो काम नहीं कर रहा। Can you hear us, sir? Can you hear us? Honorable Minister of State Culture and ये 75वां साल है, अमृत महोत्सव का वर्ष है, जिसमें आपका मंत्रालय सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अर्जुन राम मेघवाल जी, कैन यू हियर अस सर? तुमको पूछो, उनका ना कैमरा आ रहा है ना ऑडियो आ रहा है, बात करो। ओके, रिमार्क्स, कैन वी हैव सम रिमार्क्स इमीडिएटली एंड फास्टली फ्रॉम मेजर जनरल अभय गुप्ता। अभय गुप्ता जी, मेजर जनरल अभय गुप्ता। गुड इवनिंग। बहुत सारे व्यूज अभी सबने रखे। लास्ट व्यू था सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन अपनी जगह बहुत अच्छा है, पर फिर उसमें पॉलिटिसाइजेशन आना शुरू हो जाता है, और शायद इसीलिए CSR को कॉर्पोरेट लेवल पे अपने आप छाटने के लिए छोड़ दिया कि आप सेलेक्ट करो कहाँ क्या करना है। इसका स्कोप इतना वास्ट है कि वाकई में कहाँ फोकस करें वो ढूंढना और उस फोकस को परस्यू करना बहुत मुश्किल है। इतनी गरीबी, इतना सारा हमारे यहाँ इलनेस, रूरल एरियाज, अर्बन स्लम एरियाज, इन सब को देखते हुए एक चीज मैं फोकस कराना चाहूंगा, जो कि एक्स सर्विसमैन के बारे में पॉइंट उठे हैं और जनरल राव और एडमिरल लांबा ने भी बोला है। हमारे फौजी जो इंजर हो जाते हैं,
कई डिसेबल हो जाते हैं, हालांकि उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, पर वो अपने खुद का काम नहीं कर पाते और उनकी फिर एक जेंटल पॉवर्टी वाली हालत होके ना तो वो किसी से मांग सकते, ना वो कोई यूजफुल वर्क कर सकते। ये एक सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट आता है जो फौजी मार्टायर हो जाते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, अब वो अगर शादीशुदा है तो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो वाइफ और बच्चों को जाते हैं, वो पेरेंट्स फिर बिरेफ्ट रह जाते हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, खास तौर पे गांवों में जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, बुढ़ापा आ गया है। ये एक सेगमेंट है। तो ये हालांकि ओवरऑल जब हम देखते हैं कि कितनी गरीबी है, कितना सब चीजें हैं, तो शायद हम सोचते हैं कि इनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, पर ध्यान करें मेहरबानी करके कि जो पेरेंट्स हैं और उनका एक ही लड़का या और लड़कियां हैं, गांव में रह रहा है, वो कैसे करेगा? तो इसके लिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 26/11 के बाद बहुत सारे हमें अप्रोच किए थे एनएसजी में, और हमने एफर्ट करके सरदार गजेंद्र की मदर के लिए कुछ पैसा डाइवर्ट भी कराया था। तो ये चीजें जो पेरेंट्स के लिए हो गई वो बहुत अच्छी हुई। अर्जुन मेघवाल जी मेरे बीकानेर के हैं, तो राम राम साहब। अर्जुन जी सुन पा रहे हैं? राम राम। अर्जुन जी, आपको मेजर जनरल राम जी, राम राम। मेजर जनरल अभय गुप्ता की तरफ से साधुवाद दिया जाता है। मेजर जनरल अभय गुप्ता 26/11 में एनएसजी के चीफ थे ये। इनके सामने 2 अशोक चक्र विजेताओं ने अपनी देश के लिए शहादत की। तो मेजर जनरल अभय गुप्ता बता रहे हैं कि अशोक चक्र संदीप को मिला, लेकिन गजेंद्र सिंह जी को, हवलदार गजेंद्र सिंह जी को वो अशोक चक्र मिला, लेकिन उनको पर्याप्त धनराशि नहीं मिल पाई उनकी माता जी को। तो वो बता रहे हैं इस विषय में। तो मैं तो इनके घर गया हूँ। बोलिए अभय गुप्ता जी। मैं अपनी बात खत्म कर लूं तो मैं ये कहता कि ये छोटे छोटे सेगमेंट रह जाते हैं। इसी में आ जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी। कई बार जो पुराने स्पोर्ट्समैन है, खबरों में आता है कि वो बेचारा सड़क पे रेडी लगा रहा है, तो इनमें शायद डिफ्यूज्ड मैनर में अगर जो कंपनियां हैं अपने अपने थोड़े नीचे स्लॉट निकाल लें तो ये सारे कवर हो जाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से मैं भी थोड़ा ताज ग्रुप में काम किया और मैंने देखा कि सीएसआर से वाकई लोग बाग बहुत सीरियसली लेते हैं और कोशिश यही करते हैं कि अपना जो पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा लोगों का भला हो। So thank you very much for giving me this opportunity. You know, this is a wonderful platform for all of us to be sharing. अर्जुन जी, हमारे साथ फगन कुलस्ते जी जो थे, हमारे साथ में जनरल वीके सिंह जी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केजी बालकृष्ण साहब थे। ऑनलाइन कार्यक्रम है, लोग आते हैं, आधी घंटा 1 घंटा रह पाते हैं। आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये अमृत महोत्सव का वर्ष है, इसके बाद अमृत काल प्रारंभ होगा। 75 साल भारत के 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव की घोषणा की थी। हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे मित्रों के कारण हम लोगों ने 200 कार्यक्रम कंप्लीट कर पाए। आज हमारे साथ बीएन तिवारी भी जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट है फिल्म इंडस्ट्री के, बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है तिवारी जी। मेघवाल जी कल्चर मिनिस्टर भी हैं और बहुत ही बड़े मतलब ये समाज सेवक हैं। क्या आप इनसे अपनी इंडस्ट्री के बारे में कुछ नमस्कार कहना चाहेंगे? वल्लभ भाई कटरिया, जय हिंद। वल्लभ भाई कटरिया और गिरीश सांगी जी, वल्लभ भाई कटरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वल्लभ भाई कटरिया पुराने मंत्री रह चुके हैं और गिरीश सांगी भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। धन्यवाद सर आप लोगों का। बीएन तिवारी, योर रिमार्क्स सर। नमस्कार जनरल बीके जी एंड मेघवाल साहब, तमाम फैमिलीज जितने आए हुए हैं सबको हमारा प्रणाम। मैं चाहूंगा कि इस समय अमृत महोत्सव तो सिनेमा इंडस्ट्री के लिए आज तक कुछ सिनेमा पहुंचा सकता है। देश में एक जागरूकता आई है और इस जागरूकता को
CSR जो कुछ कर रही है सो कर ही रही है, मगर सिनेमा जगत एक ऐसा है, विजुअल कंटेंट ऐसा होता है कि अपनी बात को डायरेक्ट आम आदमी तक पहुंचाना, जैसा गुप्ता जी बता रहे थे कि गांव-गांव के छूट जाता है, लोग गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें बननी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उनकी भावनाओं को हम दिखा सके। अभी 75 साल हमारे हो रहे हैं, अभी और कितने साल होंगे कि हम कुछ अच्छी बातें करेंगे। ये सही टाइम है। मेरी सरकार से आप सबसे दरख्वास्त है कि हमें कुछ ऐसा सिनेमा इंडस्ट्री के लिए करना चाहिए, हमें उस दायरे में कुछ ऐसी चीजें बनानी चाहिए। इसको बनाने के लिए क्या होता है कि जब तक कमर्शियल नहीं होता है हमारे चीज बिकती नहीं है, लोग लाइक नहीं करते हैं, रुक जाती है। मगर सरकार यदि सपोर्ट करती है तो तमाम भावनाओं को हम लाकर दिखा सकते हैं। जो आज जरूरत है, समाज में एक बदलाव की जरूरत है। समाज जो है काफी जो है धर्म को लेकर झूठी सूटी बातों को लेकर के बहुत भटकता हुआ नजर आ रहा है। सिनेमा एक माध्यम है, जहां तक मैं समझता हूं कि लोगों को एक मार्गदर्शन दे सकता है। इसके लिए सरकार की अपनी ड्यूटी है कि सिनेमा इंडस्ट्री के ऊपर एक अंकुश लगाए, तो सेंसर रहे। हर चीजें जो वेब सीरीज में आ रही है, सीरियल में आ रही है, जिसका सेंसर नहीं हो रहा है, उसको रोका जाए, किसी के भावना के साथ खिलवाड़ न हो। ठीक है तिवारी जी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जो 2 साल में CSR का कंट्रीब्यूशन हुआ, वो आपके जो कलीग्स थे, जैसे कुछ फिल्म स्टार वगैरह थे, उनकी तरफ से ही ज्यादातर हुआ। Now I will also request the Honorable Minister of State, because this is the Amrit Mahotsav year. कल्चर मिनिस्ट्री ड्राइव करती है इसको, DAVP कल्चर मिनिस्ट्री, आपका मंत्रालय, आपने फाइनेंस भी देखा एक समय भारत सरकार के लिए। हम एस्पिरेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक कॉन्सेप्ट करीबन 2 साल से उस पर विचार विमर्श चल रहा है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होती है, वैसे बाड़मेर जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अरुणाचल में है 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए भी CSR का पैसा लग सके। और सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ में नहीं, स्पोर्ट्स है। हमारे साथ ओलंपियन जुड़ा हुआ था साजी थॉमस, अभी थोड़ी देर पहले वो चले गए। हमारे साथ में संगीत जगत से अनूप जलोटा जी और ये पंडित राम कुमार मिश्रा जी जुड़े थे। हमारे साथ आर्मी के डिफेंस के बड़े लोग हैं। गौ माता के संरक्षण के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड से गिरीश सांगी जी हैं और वल्लभ भाई कटरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। तो मैं अरुण मेघवाल जी से विनती करता हूं कि CSR एक इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिर्फ एजुकेशन हेल्थ और पैसा दे दिया और एक पिंड छूटा, मैंडेट को फुलफिल कर लिया, उसकी जगह क्या देश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, कारपोरेट की क्या सोचने की शक्ति होनी चाहिए, किस तरह से प्रयास होना चाहिए, उस पर थोड़ी सी आप छवि डालने का प्रयास करें सर। थैंक यू जी। सर कैमरा माइक ऑफ हो गया सर। हाँ, अभी अमित जी मुझे ही बोलना है ना। हाँ मंत्री जी आपको CSR के ऊपर में अपने विचार व्यक्त करने हैं। ठीक है अमित जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। आज इस आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आपने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया, और इस कार्यक्रम से अभी मैं जुड़ रहा था तो अभय गुप्ता जी कुछ कह रहे थे, हमारे बीकानेर से ही हैं। मैं अभय गुप्ता जी के घर भी गया था, अखिलेश प्रताप सिंह जी के साथ, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सतप्रकाश आचार्य जी और हम लोग अभय गुप्ता जी के घर गए थे। कोई विषय था उस समय, और वल्लभ भाई कथीरिया भी जुड़े हुए हैं। आपने बताया था कि अगन सिंह कुलस्ते साहब भी जुड़ के गए हैं, और अभी BN तिवारी जी भी बोल रहे थे। जनरल वीके भी काफी समय जुड़े रहे। जनरल VK सिंह जी भी जुड़े रहे, अच्छी बात है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आजादी का अमृत महोत्सव ये हमारा 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और जैसा आपने ठीक कहा कि 12 मार्च से प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत साबरमती से की थी, गुजरात से। उस समय तक 75 ऐसे इवेंट होने थे, कुछ लोग 75 किलोमीटर चले थे। तो आज के इस कार्यक्रम में जो कंपनियां जुड़ी हुई है, कुछ 75 ऐसे
जो नीडी लोग हैं उनको छांट सकते हैं क्या, जिसका अभी अभय गुप्ता जी जिक्र कर रहे थे कि कोई स्पोर्ट्स में किसी कारण से बहुत अच्छा करता है लेकिन अवार्ड लेते समय या कोई व्यवस्था के कारण उसको वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है, तो क्या हम ऐसे लोगों को CSR के माध्यम से वो हकदार या हक दिला सकते हैं अवार्ड दे करके? या कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है लेकिन उसको साइकिल नहीं मिल रही है, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन में तो CSR में बहुत काम होता है। कंपनी एक्ट 135 में ये प्रावधान है कि ये आपको CSR का काम करना पड़ेगा, फिर इसको मैंडेटरी किया था, फिर कुछ विषय आया कि नहीं इसको मैंडेटरी तो करो लेकिन कोई कंपनियां नहीं करेगी तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत जुर्माना लगाओ, ये लगाओ, वो हमने उसको डीक्रिमिनलाइजेशन किया आप लोगों के सुझाव के आधार पर ही, और हमने ये माना कि कंपनियां अपने आप ही 135 के तहत CSR का काम कर रही है, अपने प्रॉफिट का 2% जो प्रॉफिट कमाती है अंडर द नॉर्म्स होती है वो 2% कर रही है। कोई पर्यावरण में कर रहा है, कोई हेल्थ में कर रहा है, कोई एजुकेशन में कर रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो छूटे हुए हैं जिसका जिक्र अभी अभय गुप्ता जी कर रहे थे। अपने को इस आजादी के अमृत महोत्सव के काल में 75 ऐसे नीडी लोग, जो हमारे विद्यार्थी भी हो सकते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स के लोग भी हो सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई करके और कहें देखिए रूटीन CSR ये है, कोई प्याऊ बना दे, कोई गांव में स्कूल बना दे, कोई एक्सरे मशीन दे दे, ये रूटीन का CSR। देखिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ऐसे 75 ऐसे जिनको जो नीडी हैं इनको हमने छांटा है और इन कंपनियों से हमने इनको CSR फंड के तहत मदद की है। तो आजादी के अमृत काल में बहुत बड़ा काम हो सकता है अमित गोयनका जी, मैं ऐसा समझता हूँ। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है और लाल किले की प्राचीर से भी कहा है कि यही समय है और सही समय है, भारत का अनमोल समय है। हम 75 साल तक कैसे चले अभी तक, इसका विश्लेषण करना ये एक काम है, लेकिन हम आगे 25 साल तक कैसे चलेंगे जब 2047 में 2047 में भारत अपने आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भारत किस स्थान पर खड़ा मिलेगा? क्या भारत में जो हम चीजें तय की है उन ऊंचाइयों को हम छू पाएंगे? क्या भारत ज्ञान का केंद्र बन सकेगा? क्या भारत स्पोर्ट्स का हब बन सकेगा? क्या भारत आध्यात्मिकता का और शिक्षा का हब बन सकेगा? भारत विश्व को ज्ञान दे सकेगा? ये कल्पना हमें 2047 तक के लिए रोड मैप बनाने के लिए भी ऐसे प्रोग्रामों में करनी चाहिए। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मुझे 6:30 पे एक दूसरी मीटिंग में जाना है, राष्ट्रपति जी का चुनाव है, आपको पता ही है। तो चुनाव में हमारी कुछ ड्यूटियां लगी हुई है, मीटिंगें लगातार इलेक्शन मैनेजमेंट की हो रही है, तो मुझे बीच में जल्दी जाना पड़ेगा। आपने मुझे जोड़ा, मेघवाल जी 2023 तक अमृत महोत्सव 2023 तक चलेगा? हाँ, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा जी, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और इसमें अब मंत्रालय की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स या इनिशिएटिव्स हैं जो कल्चर मिनिस्ट्री लेगी, उसमें अगर थोड़ा सा बताएं। जो अमृत महोत्सव से हम लोग योग दिवस मनाते हैं, उसी तरह से क्या गतिविधियों पे कल्चर मिनिस्ट्री, जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, इन चीजों पे कैसे क्या फोकस होगा? आप अमित जी, आजादी के अमृत महोत्सव की नोडल मिनिस्ट्री ही कल्चर मिनिस्ट्री है। सारे मंत्रालयों से हम ही प्रपोजल लेते हैं, उनको हमारी एक नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनी हुई है अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसको मंजूर कराते हैं और हर तरह के काम होते हैं। आगे हमारा मंत्रालय नहीं, कोई भी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री हो, जो भी अभी काम करती है उसमें आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान संस्कृति मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है, यहीं से अप्रूव होकर के मामले आगे जाते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, सब मंत्रालयों ने बहुत अच्छे से काम किए हैं, सब डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे से काम किए हैं। तो हमारी आपसे विनती है कि इस वर्ष में, इस अमृत महोत्सव के वर्ष में जो कि 2023 तक चलेगा, इसमें आप लोग विषयारोपण, संगीत, स्पोर्ट्स, खेलकूद, इन सब चीजों पे भी, जैसे योग का एक दिवस है 21 जून, वैसे ही हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों ना हम
फ्रांस ने अगर कोई एक दिन डिक्लेयर किया 21 जून को म्यूजिक डे और वो विश्व का म्यूजिक डे बन गया, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र में भारत हमारी कैन आई हैव द ऑडियो ऑफ प्लीज? தமிழக மக்களை தன் பக்கம் ஈர்த்து விட்டார் என்று நான் சொல்ல வேண்டும். ओके, उसी तरह से वृक्षारोपण क्लासिकल म्यूजिक, इन चीजों पर भी फोकस किया जाए ताकि इस देश जो स्लम्स के बच्चे हैं, एक फिल्म बनी थी झुंड, इसके डायरेक्टर और टीम जुड़ी हुई थी हमारे साथ, जिसमें स्लम्स के ऊपर में उन्होंने काफी जबरदस्त काम किया और अमिताभ बच्चन जी उसके फिल्म में वो थे, मेन एक्टर थे, बड़ी सुपर हिट हुई वो पिक्चर, उसके पूरी टीम हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी। तो आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसी चीजों पे एनसीपीसीआर, एनसीडब्ल्यू ऐसी संस्थाओं को लेकर आप लोगों को काम करें, विचार विमर्श करें, ताकि उसके बाद जो अमृत काल प्रारंभ हो, उस अमृत काल में 2047 तक पहुंचते पहुंचते हम विश्व की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर देश बन के उभरे, जो कि हम आज से हजारों साल पहले थे, लेकिन बाहर के लोगों ने आके हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरुण मेघवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गिरीश सांघी जी भी जुड़े हुए हैं। गिरीश सांघी जी बहुत अच्छे। गिरीश सांघी जी आप 2 मिनट कुछ बोलना चाहेंगे मेघवाल जी को? आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब को मेरा प्रणाम, और कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से नोडल एजेंसी के द्वारा पूरे भारत को एक सूत्रता में जोड़ने का जो सुंदर कार्य है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसे आपने बताया 75 लोगों को चुन के उनको बेनिफिट सीएसआर से दिलाने का, मेरा यही निवेदन है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से या कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से 75 मॉडल गौशाला भारत में बनाई जाए। कामधेनु जैसे 75 अपनी ब्रीड्स है अलग अलग, तो ऐसे उन हर ब्रीड का एक अच्छा मॉडल उसी स्टेट में जहाँ की वो मूलतः है, ऐसा कुछ आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से 500 एकड़ 1000 एकड़ जमीन में एक मॉडल के रूप में कुछ इसको आगे किया जाए, तो कल्चर मिनिस्ट्री और सीएसआर और भारत सरकार ऐसा करके अपनी सारी जो ब्रीड, ओरिजिनल ब्रीड है, उसको मेंटेन करने का बहुत अद्भुत कार्य इस अमृत महोत्सव के दरमियान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अच्छा सुझाव है सुनील जी, अच्छा सुझाव है। हम जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसको कहेंगे, और अच्छा सुझाव है, जैसे 75 गौशाला बने तो अच्छा काम होगा। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अमृत कुंज की व्यवस्था करी है, जगह जगह तालाब बन रहे हैं, उसी तरह से एक और फाइनल सुझाव सर हमारी तरफ से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये देश के आत्मनिर्भरता के लिए अनिवार्य है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सीएसआर का पैसा लगना बहुत जरूरी है। आप जैसे लोगों की जो मिनिस्ट्री है वो इसमें भी लोगों को इसमें सचेतन करे, ताकि हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सर, उन 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक प्रोडक्ट को चुन के हमारे इस अमृत महोत्सव के काल में ही इसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेघवाल जी, आप स्वस्थ रहें, थैंक यू जी, हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच सर। नाउ वी विल आस्क कर्नल before we end the show, Colonel Ranjit Singh ji, 2 minutes of your final remarks on this. थैंक यू अमित जी। रिस्पेक्टेबल मंत्री जी आप में अभी भी हैं। मैंने स्टार्ट किया था सीएसआर और क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन से, बाकी पूरा आगे काफी बातें बड़ी जो मैंने सुनी। अब मैं सिर्फ 3 क्विक पॉइंट्स कहना चाहूंगा। सबसे पहले, वी नीड टू हैव a synergy of effort amongst all the stakeholders for the development projects. For example, हमने सुना rural development, healthcare, education, skill development, training. So why can't be a prioritization of work effort? For example, see in one aspirational district की on a sliding scale इतने % इतना होगा rural development पे जाएगा, इतना skill development. So prioritization of a work with synergy of effort of all the stakeholders. That is the first quick point. Second, CSR में बहुत काम हो रहा है. There should be more means and measure to see the impact assessment, compliance and impact assessment. That should be seen and visible in the public domain. So second point is impact measure, impact assessment measure. Third point, हम सब ने सुना और सभी स्पीकर्स ने बहुत बढ़िया बताया। जो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इंडिया में 92% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसे हम कैजुअल वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। 92% ऑफ द वर्कफोर्स सर अब ये बढ़ गया है,
Sir, it has India today doesn't have 92%. If you consider the MSME ka 85-90 and the gig economy workers, we've crossed 95% today. Oh, Amit ji, I was not aware. So if it is so, then some percent of the CSR, district wise or priority wise or subject wise, people should also reap the dividend. And last point, India में हम कह रहे हैं, India is reaping demographic dividend. कहने का मकसद कि 65% लोग लेस देन 35 इयर्स के एज हैं, तो इनकी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बहुत कुछ हो रहा है. गवर्नमेंट इज डूइंग टू मेनी प्रोजेक्ट्स, बट सम प्रोपोर्शन ऑफ द CSR in a dedicated and in a sliding scale should also be meant for this demographic dividend. ये ना हो कि demographic dividend demographic liability बन जाए. तो ये मेरे points थे अमित जी. Thank you. Brigadier Ajit Apte, the man who exchanged overs with Imran Khan, and his batting stance used to put Mr. Vivian Richards to shame at times. Shamira Tagore ran for cover when he used to be, meeting her in the parties. Brigadier Ajit Apte, if you've not gone to sleep, which you've never done, sir, your closing remarks, and look forward to hearing, as always, the last boss sixer is awaited from you. I think we've had some wonderful views from all the speakers. They've given an all-round overview of what India requires. The minister spoke, I think, some very valid points. How would we want to see India in 2047, which is 100 years of the independence? I think that signifies a lot, because 75 years itself is a great achievement for a great country like ours. And I think if we just focus on all the critical points given and let the center of gravity be towards promotion and growth of industry, of the uneducated, of the people who don't have too much. And if we can minimize the disproportionate, the quantities of what the people have and the people who don't have, or we reduce the have and the have-nots gap, I think we'll achieve a lot. And I think CSR can play a major role in ensuring that the have-nots can move toward the ratio, and that will be a good balance. On that note, I'll just say some wonderful points have come, and I'll leave it at that, and thank you all very much. Thank you. I would like to thank all of you for today's wonderful discussions, and so many companies. We've had a lovely symposium of top experts speaking their mind out, top ministers. Yes, egalitarian policies are important, but we do not live in a utopian world. Probably CSR is a medium to reach utopia. Thank you. Jai Hind. Namaskar.